So, brothers and sisters, we have been speaking a lot and many times about the new covenant. तो भाइयों बहनों हम बहुत बार नई वाचा के बारे में बात कर रहे हैं And many things we have been speaking about the new covenant. और नई वाचा के बारे में बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं And many of us also know the references now. और अभी तक हम सभी हम में से बहुत लोगों को वचन कहाँ पे है वो भी पता है, So that's a good thing. वो बहुत अच्छी बात है. Yeah. But what I was thinking is the truth has to work in our life. पर मैं ये सोच रहा था कि जो सच्चाई है वो हमारे जीवन में काम करे. We may know the truth, हम सच्चाई को जान सकते हैं but the truth has to set us free. पर उस सच्चाई को हमें स्वतंत्र करना है. And I want to, for this meeting, I just thought of it like that. तो इस सभा के लिए मैंने यही सोचा है. I just shared with some of our brothers. हमारे कुछ भाइयों से मैंने ये बांटी है. So this meeting is going to be a little different. तो ये जो सभा है थोड़ा सा अलग होगा. Okay? I'll be sharing something about what the new covenant means to me. मैं कुछ ऐसी बातें बांटूंगा यहाँ पे कि नई वाचा मेरे लिए क्या है उस विषय में. Okay? Because just knowing the truth and knowing any doctrine alone is not the main thing. सिर्फ सच्चाई को जानना और कोई सिद्धांत को जानना वो मुख्य बात नहीं होती है. I remember many years back, I knew how to talk about taking up the cross. कुछ वर्षों पूर्व मैं स्मरण करता हूँ कि क्रूस को उठाना क्या है इसके बारे में मैं जानता था, इसकी सच्चाई के बारे में. But in actuality, I was really not taking up the cross. पर स्वाभाविक रूप से वो जो क्रूस है मैं नहीं उठा रहा था. I was trying to make others take up the cross. मैं दूसरों को क्रूस उठवाने की कोशिश कर रहा था. So it doesn't mean that if we know the scriptures, that everything is going to be in our life. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वचन सब कुछ हमें पता है इसलिए वो सब कुछ हमारे भी जीवन में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता. So brothers and sisters, this truth of the new covenant came to me for some years now. ये जो नई वाचा की सच्चाई है कुछ वर्षों से ये मेरे जीवन में आई है. But I can say that it has brought a liberation in my life. पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस बात ने मेरे जीवन में स्वतंत्रता लाई है. So I have particularly tasted the fruit of it. और मैंने खास करके उसके जो फल है उसको चखा है. I would like to just share a few things about that. उसके बारे में कुछ बातें मैं यहाँ पे बांटना चाहता हूँ. Okay. And I'll not be sharing for long. मैं ज़्यादा समय के लिए बांटने नहीं वाला हूँ. After that, some of the brothers will share something from their life. उसके बाद कुछ भाई हैं जो आकर उनके जीवन से बांटेंगे कुछ. The brothers who normally come and share here, who take the role of sharing the word, they will share a few words. जो भाई अक्सर यहाँ पे आके बांटते हैं वो भाई जो हैं उनके जीवन से कुछ बांटेंगे. And then there will be opportunity for all of us to share something. उसके बाद हम सभियों के पास मौका रहेगा कि हम सभी अपने जीवन से बांटें. Okay, so that's a way. Please feel free to, and it's all about what the new covenant means to us. कृपया आज़ादी महसूस करें. ये सब कुछ इसके बारे में है कि नई वाचा हमारे लिए क्या है ये समझने के लिए. So, first of all, I have really have that faith of God's love. तो मुझे जो है परमेश्वर के प्रेम के बारे में पूरा विश्वास है. That's a part of the new covenant. तो ये नई वाचा का एक भाग है. That all shall know me from the least to the greatest of them. कहा गया है कि छोटे से लेके बड़े तक सभी मुझे जानेंगे. And confident of God's love. परमेश्वर के प्रेम के बारे में आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे. That's what the word of God says. For all the time that God loves us. यही परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं. 1 John 4:16 says that, and we have come to know and have believed the love which God has for us. पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 16वां वचन कहता है कि हमने जाना है परमेश्वर के पास आके परमेश्वर के प्रेम को हमने जाना है. So when I started simply believing the love of God became mine. जब मैं परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करने लगता हूँ तब परमेश्वर का प्रेम जो है वो मेरा हो जाता I है. have no doubt about God loving me all the time. परमेश्वर के प्रेम के विषय में मेरे अंदर कोई भी जो है संदेह नहीं होता है हमेशा. Other thing is that I've come to know that I'm a son of His. और एक बात जो है कि मैंने ये जाना है कि मैं उसका पुत्र हूँ. I'm not a slave. मैं अभी एक गुलाम नहीं हूँ. When I go to God,
I don't need to go in fear, but I can go in confidence. जब मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ तो मुझे डर कर जाने की जरूरत नहीं है, परंतु आत्मविश्वास से भरकर मैं जाता हूँ। That's the new covenant. यही नई वाचा है। The old covenant was the slavery. पुरानी वाचा जो थी वो तो गुलामी थी। Okay? They did not have that experience of God as their father. उनके पास परमेश्वर के एक पिता होने का एक अनुभव नहीं था। So when these two things are there, that we know God's love and we know that we are His son, ये जो दो बातें होती हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और हम ये जानते हैं कि हम उनके पुत्र हैं, then we don't have condemnation. फिर हमारे पास दंड की आज्ञा नहीं होती। This is the new covenant. ये नई वाचा है। No condemnation. कोई दंड की आज्ञा नहीं। I used to live in condemnation. मैं दंड की आज्ञा के अधीन जीता था। Not because I basically committed sin. इसलिए नहीं कि मैंने कोई पाप किए हैं। Because I always feel that does God want me to be a little better? और मैं हमेशा यही महसूस करता था कि क्या परमेश्वर मुझे चाहते हैं कि मैं और थोड़ा अच्छा बनूं? Is He satisfied with me? क्या मैं जैसा हूँ उससे वो संतुष्ट हैं? Do I need to improve myself? क्या मुझे अपने आप को और भी अच्छा करने की जरूरत है? I believe quite a number of you must be going through the same thing. मुझे लगता है कि आप में से कई लोग भी ऐसे ही एक बात से गुजर रहे होंगे। But the new covenant truth has made me feel that I am totally acceptable before God. परंतु नई वाचा की सच्चाई ने मुझे ये बता दिया है कि मैं परमेश्वर के लिए पूरी तरह स्वीकारने योग्य हूँ। I don't need to do anything. मुझे कुछ भी करने की जरूरत I am नहीं है। His. मैं उनका ही हूँ। I am His beloved. मैं उसका बहुत ही प्रिय हूँ। I don't have to prove myself. मुझे अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। He's already pleased with me. वो मुझसे पहले से ही खुश है। It was not like this before. ऐसा नहीं था पहले। Okay? So I go to Him 24/7. I go to Him freely. और मैं 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ऐसे ही परमेश्वर के पास चले जाता हूँ। No condemnation. कोई दंड की आज्ञा नहीं। But the Word of God says there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कि प्रभु यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। Then I realized that to overcome any sin or to become like Christ, I cannot do it on my own strength. फिर मुझे ये पता चलता है कि पाप के ऊपर जय पाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का बेटा बनने के लिए मुझे अपने आप से कुछ करना नहीं है। To be like Jesus is impossible. प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना जो है मुमकिन नहीं है। To gain the nature or glory of Jesus is an impossible thing. प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है और जो महिमा है वो प्राप्त करना जो है असंभव है। I don't have it within me to do anything near to the divine life. मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं वो पवित्र जीवन जीने के लिए कुछ भी कर पाऊँ। The Bible says we are not adequate in ourselves. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं। It's a new covenant. ये नई वाचा है। We are not adequate. हम पर्याप्त नहीं हैं। But it doesn't leave there. पर यहाँ पे नहीं छोड़ता वो। Our adequacy is in God. हमारी जो पर्याप्तता है वो परमेश्वर में है। Who has made us adequate? जिसने हमें पर्याप्त बनाया है। So God will make me adequate to become like Christ. तो परमेश्वर मुझे पर्याप्त करेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह जैसा बनूं। So if there is some particular sin, तो हमारे जीवन में कोई पाप है, I know I have come to the zero point that I cannot do it. मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे एक शून्य स्थान पे पहुँच चुका हूँ कि मैं नहीं कर सकता। So I have to say to God, Lord, I know I cannot do it, but I want this life. I want you to do it for me. और मैं परमेश्वर को कहता हूँ कि प्रभु ये नहीं मैं कर सकता, परंतु मुझे ये जीवन चाहिए और मैं मानता हूँ कि आप ही मेरे जीवन में कर सकते हैं। There is a wonderful promise in 1 John 5:14 and 15. एक बहुत ही अद्भुत सी वादा है 1 यूहन्ना 5 उसके 4 अध्याय में। This is the confidence that we have. If we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us and whatever we have asked, we know that we have received what our requests. 1 यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 15 वचन, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। So brothers and sisters, this is my life, that anything I need, I tell the Lord, Lord, this I am not able to do it, but I want this and I am asking this, and because it is in His will, He hears it and He answers it. तो यही है मेरे जीवन में कि मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि जब मुझे कोई ज़रूरत होती है मेरे जीवन में, तो मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि परमेश्वर मैं अपने आप से नहीं कर सकता हूँ, पर आप ये मेरे जीवन में कर सकते हैं, मेरी ये ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। That is the new covenant life. यही है नई वाचा का जीवन। We cannot do it, but God's promises help us to do it.
जहाँ हम ये काम नहीं कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर के वायदे के अनुसार परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम वो करें। The Bible says that we must be overcomers. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जयवंत बनना है। Yes, by the grace of God, I have got a faith to be an overcomer in everything. परमेश्वर के वचन के अनुसार हाँ, मुझे विश्वास है कि मैं सारे पापों के ऊपर जय पा सकता हूँ। No sin can dominate me कोई भी पाप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता, because God's grace is there upon me. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। Okay, so brothers and sisters, yeah. So and then this new covenant life is so wonderful that 1 John chapter 5 verse 3 says, "This is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome." और पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 3 वचन में अद्भुत से एक वचन ऐसा कहता है, और परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। Before being having a knowledge or a revelation of the new covenant, I could never say this. I could say this, and I must have even preached about it. But now I can gladly say that His commandments are not burdensome. और नई वाचा का जो प्रकाश है वो मिलने से पहले हो सकता है कि मैंने कहा होगा, प्रचार भी किया होगा, पर अब मैं इस बात को कह सकता हूँ सच में कि परमेश्वर की आज्ञाएं जो है वो कठिन नहीं है। Because God will never ask us to do anything which we cannot do. क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कुछ भी ऐसा काम करने के लिए नहीं बोला है जो कि हम नहीं कर सकते हैं, Because He is our Father. क्योंकि वो हमारे पिता हैं। He is not a schoolmaster or a policeman. वो स्कूल का कोई जो अध्यापक नहीं या तो पुलिसमैन नहीं है। That is the new covenant. He is our Father. यही नई वाचा है कि वो हमारे पिता हैं। He delights in us. वो हमसे बहुत ही आनंदित रहते He हैं। rejoices over me. वो मुझ पर आनंदित होते हैं। Do I feel it? क्या मुझे ऐसा एहसास होता है? I feel the negative. Feel just the opposite. मैं उसका एकदम विपरीत महसूस करता हूँ। I feel just the opposite. मैं उसके विपरीत महसूस करता हूँ। But I believe that. पर मैं उस बात पर विश्वास करता हूँ। That's why my heart is happy. इसीलिए मेरा हृदय खुश है। This is the new covenant. यही नई वाचा है। Okay, brothers and sisters, I can keep on saying, but I want all the other brothers to also share now. मैं ये बातें बोलते ही रह सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि दूसरे जो भाई है वो भी आकर यहाँ पे बांटें। Life is so different after knowing the new covenant. नई वाचा को जानने के बाद जीवन जो है बहुत ही अलग हो जाता है। I hope my family has experienced at least a little difference in my life. मैं आशा रखता हूँ कि मेरे परिवार में मेरे जीवन में जो थोड़ी सी जो बदलावट है उसको महसूस किया हो, उसको अनुभव किया उन्होंने भी। If it is not experienced, then whatever I am saying is a fake. यदि उन्होंने इस बात का अनुभव नहीं किया है तो जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ हो सकता है झूठ हो। Okay, brothers and sisters, what the new covenant means to me? भाइयों बहनों, नई वाचा जो है वो मेरे लिए क्या है, That is the topic. यही है शीर्षक। What the new covenant means to me. नई वाचा मेरे लिए क्या है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं भाई, जो मैथ्यू ने जो कुछ भी बांटा उस सुनने के विषय में, हमें जो परमेश्वर ने हमसे बातें की। I thank God for what Brother Matthew has shared and what God has और spoken नया to करार us. का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण हम सबके लिए है। And this new covenant life is very important for all of us. ये नया करार का जीवन किसके लिए है? What is this new covenant life for? आपको कहना मेरे लिए है। This is for us. This is what we should say. परमेश्वर ने जब देखा हम नहीं कर पा रहे, इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। When God saw that we cannot do it on ourselves, that's why He did it for us. तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो नए करार से परमेश्वर ने मेरे लिए कार्य किया है। So this is what I want to share, what God spoke to me through the new covenant. जैसे भाई मैथ्यू ने कहा कि डर लगता था कि मैं परमेश्वर के स्टैंडर्ड तक पहुंच रहा हूँ या नहीं, वो मेरे अंदर भी रहता है। And as Brother Matthew shared that even I was scared whether I will reach up to God's standard. or हरदम not. ऐसी सोचते रहता हूँ कि मैं और क्या मेरे अंदर कमी है प्रभु, कि ऐसा ना हो जाए कि मैं आपके लिए वेट करूँ, बाद में जब आप आए और आप मुझसे कहते मैं तुझे नहीं जानता। And I would always think that what is it that I'm lacking, and when the Lord comes and what if He says to me that depart from me. तो ये चीज़ मेरे अंदर बहुत घूमते रहता था हरदम। So this used to go in my mind all the time. मैं परमेश्वर के लिए करता था जो छोटा मोटा जो कुछ भी, लेकिन हमेशा ये एक चीज़ मेरे अंदर रहता था। So I would do a few things for the Lord, but this thought would always come into my इसका mind. मेन रीज़न ये ब्रदर कि मैं परिपूर्ण नहीं हूँ।
And the main reason for this is I'm not complete in इसीलिए myself. मैं मेरे अंदर बहुत सारे लैकिंग देख रहा हूँ. And that's why I could see a lot of जब lack यीशु in my मसीह life. को मेरे सामने देखता हूँ तो वो कमी मेरे अंदर मुझे दिख पाता था. When I would look at Jesus, I could see that lack in myself. इसके लिए मेरे अंदर वो डर आता था. And that's why I would have this fear. लेकिन नया करार का जीवन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर, एक वचन है ब्रदर्स एंड सिस्टर, रोमियो अध्याय 8 उसका 31वां वचन, Romans chapter 8, उसका 31 वचन, यहाँ पर लिखा है, हम इस बातों के विषय में क्या कहे. what then shall we say? देखो यहाँ पौलुस पूछता है मैं इसके विषय में तुमसे क्या कहूँ. So Apostle Paul says, what can we say about this? वो होता है कि परमेश्वर यदि हमारी ओर है तो विरोध में कौन रहेगा. If God is for us, who is against us? तो बहुत ही ये बहुत हमें चुनौती देने वाला वचन है. So this is a very challenging verse for us. परमेश्वर हमारी ओर है, God is for us. परमेश्वर हमारे लिए है, He is on our side and तो He is हमारा for विरोधी us. और कौन हो सकता है. Then who can be against कोई फर्क us? नहीं पड़ता कि दूसरे लोग हमारे विषय में क्या बोलते हैं, It does not matter what others have to say about us, हमारे विषय में क्या गवाही देते हैं. that what they have to testify बहुत about जरूरी us. है कि प्रभु मेरे विषय में क्या कहता है. It is important what God has to say यहाँ about पर लिखा है us. प्रभु तेरे साथ है, Over here it says that God is for तो you. तेरा विरोधी क्या करेगा. Then what can your enemy do to you? कुछ भी नहीं. Nothing. बहुत जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर जानना कि परमेश्वर हमारी ओर है. It's very important to know that God is on our side. नए करार में हम जैसे देखते हैं हर एक चीज परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए कर रहा हूँ. And in New Testament we see that God says that He is doing it for us. वो चीज हमको ये दर्शाता है कि प्रभु हमारी सहायता करना चाहता है. And what this reflects is that God wants to help us. हम में से हर एक की सहायता करना चाहता है. He wants to help each and every one of us. यदि हम ऐसा एक जीवन जीना चाहते तो प्रभु हमारा साथ देना चाहता है. If we want to live such a life, then God will help us in living it. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर परमेश्वर हमारी ओर है. So brothers and sisters, God is with us. हमेशा याद रखना, Always remember ये नया this. करार में जीवन परमेश्वर हमारी ओर है. In the new covenant life, God is for us. तो इसके लिए विरोधी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता. And because of this, the enemy cannot do anything बाइबल against कहता us. है एक ही विरोधी है हमारा, The Bible says we just have one enemy जो दिन रात भाइयों की बुराई करता है और उनको कंडेम करता है. who accuses the brethren day and night, वो शैतान है. and that is the devil. लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ में है But when God is with us, तो शैतान कितना भी कंडेमनेशन हमारे लिए करे so even if the devil brings a lot of condemnation कुछ against फायदा us, नहीं होगा, it's of no use. क्योंकि परमेश्वर का लहू हर एक पापों से हमें शुद्ध करता है. Because the blood of Jesus has purified us from all sin. और ये नए करार में मैंने एक सिक्योरिटी परमेश्वर में पाया है. And this is a security that I found in the new covenant. अब मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, And now I know that God loves me. क्योंकि मैं अभी अपने कामों को नहीं देख रहा, Because now I don't look at my deeds. मैं वो चीज को देख रहा हूँ जो यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है. I look at what Jesus has done for me. आपको पता है जो बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य में कुछ लोग थे, जो कुछ सेंट्स थे, वो लोग जब क्लेश में से निकल कर आए हैं, So in Revelation it says that there were certain saints which came out of the tribulation. बहुत तकलीफ से वो निकल कर आए हैं. Because they came out a lot of tribulation. लेकिन उधर ऐसा नहीं लिखा है कि उनके तकलीफ के वजह से उन्होंने उद्धार पाया. But it doesn't say over there that because of that tribulation they received that उन्होंने जो salvation. यीशु के लिए दुख उठाया इसके वजह से उन्हें वो वस्त्र दिए गए, ऐसा नहीं लिखा है. It doesn't say that because of the suffering that they suffered that they were given those new clothes. वहां लिखा है मेमने के लहू के कारण वो शुद्ध किए गए हैं. Over there it says that they were purified with the blood of the lamb. हमारा डिलीवरेंस यीशु का लहू ही है. So our deliverance is the blood of Jesus. ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए. And it is not what we have done for और the ये Lord. चीज ने हमारी लाइफ में एक डिलीवरेंस लाया है. And this has brought deliverance in my और ये life. जो कंडेमनेशन हम अपने आप के ऊपर डालते थे उसको दूर कर दिया है. And the condemnation that we put ourselves into has been put away with. सो ये वचन हमारे लिए परमेश्वर का एक ब्लेसिंग है कि प्रभु हमारे साथ है. So this is a blessed verse for us that God is for us. हमारा वो सर्कमस्टेंस शायद नहीं दिखता होगा कई बार. Maybe in our circumstances we cannot see this. ऐसा देखते रहेंगे, ऐसा लगता है प्रभु मेरे साथ ही ये सब क्यों कर रहा है. And sometimes we may feel that why is God doing this to us? क्योंकि वो सारे एक फीलिंग्स है. Because these are just feelings. लेकिन जो मसीह जीवन है वो फीलिंग्स के आधार पर नहीं चलता, But the Christian life is not based upon वो feelings. विश्वास के ऊपर चलता है. It is based on faith. अगर परमेश्वर मेरे साथ है If God is for us, तो हमारा विरोध कुछ नहीं कर सकता. then the enemy cannot do तो ये against चीज ने us. मेरे लाइफ को ब्लेस किया और कंडेमनेशन से दूर किया है. I want to thank God for today's word. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के शब्दों के लिए. So what the new covenant has done in my life,
और नई वाचा ने मेरे जीवन में क्या किया है। There are lots of things, but I want to share a few things और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें से मैं कुछ ही आपके सम्मुख बांटूंगा, which really, I have experienced in my own life. और जिसका अनुभव व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने स्वयं के जीवन में किया है। Jesus said in John chapter 8 verse 31 and 32. और यूहन्ना के अध्याय 8 वचन 31 और 32 में यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है। So Jesus was saying to those Jews who had believed him, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine, and you will know the truth, and the truth will make you free. और वचन यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31 और 32, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। And this freedom, India got independence in 1947. और यह जो स्वतंत्रता हम देखते हैं, आज़ादी जो भारत देश को वर्ष 1947 में मिली। So even if India was a very poor country, we became free. और जिस समय उसे आज़ादी मिली, जो भारत देश था वह बहुत ही ज़्यादा गरीब था। So when I entered or got revelation on the new covenant, और जब मुझे प्रकाशन मिला नई वाचा पर, I felt as if a hungry, thirsty man who was deprived of good food for all his life, suddenly a banquet was laid before him. और वहाँ पर मैं इसका उदाहरण इस रीति से अपने जीवन के विषय में देखता हूँ कि मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक अच्छे स्वादिष्ट भोजन से काफ़ी लंबे वर्षों तक दूर रखा गया, और अचानक से ही अब उसके सामने पूरी रीति से उस भोजन की मेज सजी हुई है। I was a slave to fear. और मैं भय का जो था वह दास बन चुका था, गुलाम था। I was afraid of the devil. और मैं शैतान से डरता था। I always lived with the fear, knowing that something bad will happen to me. और मैं हमेशा अपना जीवन इसी भय में जीता था कि कल क्या होगा, कुछ मुझे हो जाएगा। Because I knew that my life was not right with God. क्योंकि मैं यह बात जानता था कि मेरा जो जीवन है वह परमेश्वर के साथ में सही नहीं है। And that someday my sins are going to catch up with me. और किसी दिन मेरा जो पाप है वह मुझ पर ज़रूर आ पड़ेगा। And when I heard the gospel, the good news, और जिस समय वह शुभ समाचार सुना, it was presented to me like this, that a man is going to be hanged. और यह ऐसे मेरे सम्मुख आ पड़ा जैसे मान लीजिए कि एक जो आरोपी है उसे अब फांसी देने वाले हैं। And the police are coming to take him. और जो पुलिस है वह उसे पकड़ने के लिए आ रही है। And at that time, a neighbor says, "Don't take him, take my son." और वहाँ पर जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा कि उसे नहीं परंतु मेरे बच्चों को ले जाओ। I cannot, imagine even now the joy that I felt on that day. और मैं बता नहीं सकता वह आनंद जिसका अनुभव उस दिन मेरे हृदय में मैंने किया। And the freedom that it brings is amazing. और वह जो आज़ादी जो लेकर हमारे जीवन में आता है वह बहुत ही अद्भुत है। That God is not counting our sins against us. कि परमेश्वर हमारे पापों को हमारे विरोध में नहीं गिनता। And that we can start our lives afresh. और हम हमारे जीवन की जो शुरुआत है वह फिर एक बार दोबारा से नई रीति से कर सकते हैं। But I had to grow in this truth. लेकिन मुझे इस जो सत्य वचन है इसमें बढ़ना था। Because in Galatians chapter 5 verse 1 we read, और गलातियों के अध्याय 5 वचन 1 में हम पढ़ते हैं, it was for freedom that Christ set us free. Therefore keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery. मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। So what is slavery तो दासत्व क्या है in this context? इस वचन के संबंध में? It is slavery to sin. और यह दासत्व जो है वो पाप के संबंध में है। Because in Christian circles there is a false gospel going on. क्योंकि मसीह समाज में, समुदाय में आज जो है झूठे या किसी दूसरे सुसमाचार का प्रचार चलता है।
I was, for a brief time deceived by that also. और मैं काफ़ी लंबे समय तक इस सुसमाचार से भरमाया गया था That you are free to live. कि आप स्वतंत्र है जीने के लिए। If you sin, no problem. यदि आप पाप भी करें तो भी कोई बात नहीं, The blood of Jesus is there. पर यीशु मसीह का लहू वहाँ पर है। And that, that you treat the blood of Jesus like Surf or Ariel or some detergent. और आप जो वहाँ पर यीशु मसीह के लहू को सर्फ या फिर एरियल जैसे जो कपड़े धोने के आते हैं पाउडर वैसे समझते हैं। But true freedom, I realized, is that I need to battle against sin. और मैंने वो उस सत्य वचन का प्रकाशन तब पाया जब वहाँ पर मैंने जाना इस सत्य को कि मुझे पाप से लड़ना है। And as we heard, that I cannot win on my strength. और मैंने यहाँ एक बात जानी कि इसे मैं अपने शक्ति के आधार पर नहीं कर सकता। And that battle I must fight every single day in prayer on my knees. और मुझे हर रोज प्रतिदिन प्रार्थना में घुटने टेक कर इस युद्ध को लड़ना है। That I must weep and mourn over my sins. कि मेरे पापों पर मैं रोऊं और पश्चाताप करूं। And that I go before God that I want to live in freedom. और मैं परमेश्वर के पास जाकर उसके सम्मुख कहूं कि मैं स्वतंत्र होकर आज़ादी में जीना चाहता हूं। And that true freedom comes by taking up the cross. और सच्ची जो आज़ादी स्वतंत्रता है वह हमें अपना स्वयं का क्रूस उठाने के द्वारा आती That है। you don't have to bother about the opinions of other people. जहाँ पर आपको औरों का आपके विषय में क्या मानना या राय होती है उसके विषय में परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। That I live before the face of my God. क्योंकि मैं अपने जीवते परमेश्वर के मुख के सम्मुख जीता हूँ। He is always pleased with me. सॉरी। He is always happy with me. और वह हमेशा मुझसे प्रसन्न होता है। My daughter doesn't have to do anything special for me to be happy about her. और मेरी बेटी को आवश्यकता नहीं कि मुझे प्रसन्न करने के लिए वह कुछ करे। I'm just happy that she's my daughter. मैं केवल इसी से प्रसन्न हूँ कि वह मेरी बेटी है। And God is a billion times much better father than me. और परमेश्वर इससे कई गुना अधिक हमारे लिए अच्छा और भला है। That I'm always accepted. कि मैं हमेशा स्वीकार किया गया हूँ। But as the Apostle Paul says, और जैसा कि प्रेरित पौलुस एक स्थान पर ऐसे कहता है that because I lived such a wretched life, I worked harder than all the other apostles. और वहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है कि मैंने औरों से ज़्यादा अधिक पाप में जीवन बिताया है। यही कारण है कि मैं अन्य प्रेरितों से ज़्यादा अधिक अब परिश्रम भी करता हूँ। That is the spirit I want to have, that I labor out of love for my Lord. कि मैं प्रेम में आकर अपने प्रभु के लिए और ज़्यादा अधिक परिश्रम करूं। And then it doesn't become burdensome. और तब यह हमारे लिए कठिन बात या बोझ नहीं होगा। Men may put burdens on us, हो सकता है मनुष्य हम पर बोझ बनाए, but the Lord will never put burdens on us. लेकिन प्रभु जो है वह हम पर कभी बोझ नहीं बनाएगा। He will never say you're not good enough. और वह हमसे नहीं कहेगा कि तुम अब भी बेहतर नहीं हो। I remember I was in a church before I could come to CFC. और CFC कलीसिया में आने से पहले मैं जिस कलीसिया में था, Now I'm not trying to criticize or anything like that, और मैं वहाँ पर किसी पर दोष लगाने के उद्देश्य से यह नहीं but कहता, I always felt that I was not good enough. लेकिन वहाँ पर मैं हमेशा अपने मन में ऐसे महसूस करता कि मैं अब भी और अच्छा नहीं हूँ। I used to go for fasting prayer. मैं वहाँ पर उपवास की प्रार्थना में जाता, I was attending Bible study. वहाँ पर बाइबल अध्ययन की सभा में I जाता, was separately taking myself a Bible study. और मैं अलग व्यक्तिगत रूप से स्वयं के लिए अलग से बाइबल का अध्ययन भी लेता, And then, so many other prayer meetings. और उसके अलावा अन्य प्रार्थनाएं सभाएं होती। Now, I'm not trying to boast or anything, please. मैं उन विषयों में किसी भी बात में घमंड नहीं But करता, I always felt that I was not good enough. लेकिन सब बातों में मैं अपने मन में यही सोचता कि मैं अब भी बेहतर नहीं हूँ। And once I went in prayer to the Lord and I said, Lord, how is it possible? How can I go for an all-night prayer when, next day I have to go for work and, it's just not possible. और मैं प्रभु के सामने जाकर कहता कि प्रभु जी यह कैसे संभव है कि मैं सारी रात प्रार्थना करने में समय बिताऊं जबकि मुझे सुबह उठकर अपने ऑफिस अपने दफ्तर काम पर जाना है। And I heard the sweetest response from the Lord. और मैंने बहुत ही मीठा प्रत्युत्तर प्रभु से सुना, He said, I am not asking you to do that. और प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे यह करने के लिए नहीं कहता। And I felt so much of peace in my heart. और मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी शांति अपने हृदय में पाई। And the word is true that the commands of the Lord are not burdensome. और प्रभु का वचन सत्य है, वह कहता है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। May God help all of us. और प्रभु हम सभी की सहायता करें।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि I thank the Lord, जो भी भाइयों ने अभी शेयरिंग किया, मैं उस लेवल तक तो नहीं हूँ, and whatever the brothers have shared, I'm not up to that level. बट एक चीज़ जो नई वाचा जो मैं समझता हूँ इस तरह, But what I understand from the new covenant, कि एक वचन जो मत्ती 18:35 में लिखा है कि this verse in Matthew chapter 18, verse 35. इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाइयों को मन से क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी स्वर्ग में है तुमको क्षमा नहीं करेगा। My heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart. मैं जब ये वचन पढ़ा तो मैं आकर रुक गया कि प्रभु मैं उस टाइम पे उस समय में परमेश्वर इस वचन से बात किया जब मेरे शत्रु के सामना कर रहा था मैं। So when I was reading this verse, I just stopped over here because at that point of time I was facing the enemy. मेरे दिल में मैंने उसको ऊपर से तो कुछ किया नहीं था, बट मेरे मन में उसके लिए प्रति जलन और गुस्सा और उसके लिए बुराई का मैं योजना कर रही थी कि सब कुछ हो जाए, कोई उसके साथ झगड़ा करे ताकि उसको कुछ गाली गलौज करे। So on the outside I did not do anything to that other person, but on the inside I had a bitterness and anger towards him that someone would get into a fight with him and bad things would happen to him. जब ये वचन पढ़ा कि जब मैं मन से माफ़ नहीं करूँगा, When I read this verse that if I do not forgive from the heart, मैं परमेश्वर के सामने गया, प्रभु मैं नहीं कर सकता है। I went to the Lord and I said that I cannot do it. मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं इसी तरह बोला कि प्रभु मैं नहीं कर सकता हूँ। And honestly, this is what I said to the Lord, that I cannot do this. और मैं देखा कि जब परमेश्वर मेरे अंदर काम करना चालू किया कि उस भाई को मैं माफ़ करूँ, And I saw that God started working in my heart to forgive this brother. और ये प्रैक्टिकल टर्म में हुआ मेरे प्रिय भाइयों And this has actually happened practically with me. कि मैं अपने शत्रु को, मेरे लिए उसने बहुत सारा बुरा बुला इंसल्ट किया, जो भी, मैं उसको भाई को माफ़ कर सकूँ। And that this other person who was like an enemy to me, he spoke really bad things about me, that I was able to forgive him. और मैं ये इस तरह समझता हूँ कि ये न्यू कॉवेनेंट है And this is what I understand as the new कि covenant, परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है। that God works within us और आप ईमानदारी से परमेश्वर के सामने बोलोगे, if we honestly come before God. और ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ। It's not like I have become perfect. जब भी अभी मैं जब सामना करता हूँ, Even now when I am faced with the situation, मैं प्रे करता हूँ परमेश्वर ऐसा एक मौका मुझे दो कि मैं उसके साथ भलाई करूँ। and I pray to the Lord that God will give me that one opportunity to do good for the other क्योंकि person. वचन कहता है तुम बुराई को भलाई करके जीत लो। Because God's word says that you have to overcome evil with good. लॉर्ड ये मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरे साथ मेरे को मौका दो कि इसके साथ मैं भलाई करूँ। So no matter what the other person has done evil to me, God give me the और opportunity मैं to do good सच to में him. परमेश्वर को धन्यवाद करते कि इस समय में इस टाइम में कि मेरे लिए आसान हो गया कि मैं अपने शत्रु को माफ़ करूँ। And I thank the Lord that I have reached this point wherein I can forgive my enemy from the heart. और ये इस तरह से मैं न्यू कवेनेंट समझता हूँ। And this is what I understand from the new और covenant. एक चीज़ जो परमेश्वर के सामने जाना है, And the other thing is to go before the God, go before God. जब मैं गिर जाता हूँ, When I fall, मैं गिर जाता हूँ कि मैं अपने आप को कॉन्डमनेशन आता है, and when I fall, this condemnation comes in. मेरे अंदर आता है जब कॉन्डमनेशन, So when condemnation comes, तो उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ होता है कि परमेश्वर मुझसे उतना ही प्रेम करता है जितना पहले करता था। so that time I realized that God still loves me the same way as He used to love me before. उसको पता है उसको उसका वीकनेस क्या है, Because He knows my weakness. और वो प्रेम को देखकर मैं आकर्षित हो जाता हूँ, And I'm attracted to God again because of His love. और वो मुझे वापस खड़ा करता है, And He makes me stand again. और उसके सामने जाने के लिए मुझे कोई ऐसा एक गुलाम या सर्वेंट जैसा नहीं, बट एक पुत्र के जैसा मैं जाने के लिए मुझे हिम्मत मिलता है। And I do not go before God like a slave, but I get the strength to go before God as a son. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस जीवन के लिए, I thank God for this kind of life. और मुझे बहुत सारा चीज़ सीखना है इस चीज़ के न्यू कॉवेनेंट के बारे में। And I want to learn many things more about the new और इतना covenant. से जो परमेश्वर ने सिखाया, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। I thank God for what God has taught me about the new covenant. धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मौका दिया कि कुछ चीज़ बांट सके नए कवेनेंट के बारे में। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हम सच में ब्लेसेड है कि हमको ये सब चीज़ सुनने मिल रहा है,
और मैं सिर्फ हमने जो कुछ भी नए नियम और पुराने नियम में अब तक सीखा वो हमने सिर्फ थ्योरी चीज़ समझा है, बट मैं प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करी थी। जैसे मैथ्यू अंकल ने एक चीज़ का एग्जांपल दिया था कि अब्राहम, सैरा और हगार के बारे में कि मैं इस तरीके से देखती हूँ कि अब्राहम और सैरा, अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा दिया था कि वो उसके द्वारा एक संतान उत्पन्न करेगा, बट सैरा ने अपना दिमाग लगाया और अब्राहम के अंदर ताकत था, वो सोच रहा था कि वो जाके हगार के पास जाके एक संतान को उत्पन्न करेगा, और उसने वो किया और उसने इस्माइल को पैदा किया। बट उसका क्या फ्रूट हो गया? वो सबके लिए एक ब्लेसिंग नहीं ठहरा, वो बहुत लोगों के लिए एक आप देखोगे उसके लाइफ के बारे में तो वो झगड़ा करने वाला और दूसरों को नीचा ठहराने वाला, वो उस टाइप का वो था जिसमें इस्माइल और आइज़ाक के बीच में झगड़े होने लगे। और सेम जब परमेश्वर ने आइज़ाक को ब्लेस किया देकर, तो वो औरों के लिए, हम सब के लिए वो एक ब्लेसिंग ठहरा। तो मैं सोच रही थी कि उसके अंदर मैथ्यू अंकल ने एक चीज़ शेयर किया था कि जब भी हम एंड तक हमको लगता है कि हमारे अंदर ताकत है, हम ये चीज़ कर पाएंगे, हमारे अंदर ताकत है, हम गुस्से पे विजय हो पाएंगे, या हम किसी पर गॉसिपिंग करने पे या किसी का बैकबाइटिंग करने पर या कुछ भी चीज़ करने में हम अपने आप से कर पाएंगे, तब तक वो हमारे अंदर वो चीज़ टूट नहीं जाता कि नहीं मैं मर चुकी हूँ, मेरी कोख पूरी बंद हो चुकी है। और जब वो सैरा अपने आप पे हंसती है कि यार मैं अब मर चुकी हूँ, मैं कब कैसा बच्चा पैदा कर सकती हूँ, जब तक हम अपने आप पर वो चीज़ नहीं समझते तब तक हम नए टेस्टमन में परमेश्वर हमारे द्वारा एक आइज़ाक को उत्पन्न नहीं कर सकता जो औरों के लिए ब्लेसिंग ठहरेगा। तो मैं ये चीज़ अपने आप में मुझे लगा कि लॉर्ड मैं उस दौर से उस चीज़ से एक्सपीरियंस करी थी कि मैं बहुत सारी चीज़ में, अभी भी मेरे अंदर बहुत सी चीज़ में मैं जूझती रहती हूँ कि, और मैंने ये चीज़ पता नहीं आप लोगों ने महसूस किया है कि नहीं, बट मैं ये चीज़ इवन मैंने मैथ्यू अंकल से ही पूछा था कि पता नहीं रहता है कि कभी हम ओल्ड टेस्टमेंट में चल रहे हैं या न्यू टेस्टमेंट में चल रहे हैं। ये चीज़ बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है जब तक हमको रियल में वो चीज़ कन्विक्शन नहीं हो जाएगी रियल में न्यू टेस्टमेंट क्या है, ओल्ड टेस्टमेंट क्या है, तब तक हम उसमें नहीं चल पाएंगे। और एक चीज़ मैथ्यू अंकल ने बताया था कि हम एक ओल्ड टेस्टमेंट में हम एक स्लेव्स है, मतलब एक गुलाम की तरह है, और नए टेस्टमेंट में हम एक बच्चों की तरह, हम एक उसके उसके डॉटर्स हैं लाइक। तो मैं देख रही थी कि एक मेरे सामने एक एग्जांपल आया था कि अगर एक बिजनेसमैन है और वो एक सर्वेंट को काम देगा कि तुमको OT भी करना है, 9 आवर्स ड्यूटी करना है, ऊपर से OT करना है, तो वो फेडअप हो जाएगा कि मैं कितना काम करूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, अभी मैं नहीं कर पाऊँगा करके। बट एक बच्चे को, वो अपने बेटे को या बेटी को बोलेगा बेटा चल अपने को ये बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, अपन दोनों मिलके करते हैं, तो वो बेटा कितना प्राइड फील करेगा कि मेरे डैडी को मैं हेल्प कर रहा हूँ करके, जबकि उसका डैडी उसको सिखाना चाह रहा है वो सब चीज़। तो मैं देख रही थी कि मेरी लाइफ के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे डैडी मुझे सिखाना चाहते हैं, और वो मुझे अकेले नहीं करने देंगे कि तू 9 घंटे जॉब कर या OT कर या सब चीज़ कर, बट मेरे डैडी मेरे साथ रह के मुझे बोल रहे बेटा चल अपन दोनों मिलके करते ये चीज़, ये नहीं ऐसे कर, ऐसे बात नहीं करना है, वैसे बात करना है। और एक चीज़ मैंने देखा कि रियल में हमको किसी के सामने जीने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ रहेगा कि लॉर्ड मुझे आपके सामने जीना है। अगर कोई मुझे अप्रिशिएट भी कर रहा है तो भी वो कूड़ेदान में डालने के लायक है, और कोई मेरी निंदा भी कर रहा है प्रभु तो वो तेरी कर रहा है, मैं तेरी बच्ची हूँ, तू सब कुछ जानता है करके। तो हमको किसी के सामने क्लैरिफिकेशन या किसी के सामने जीने की ज़रूरत नहीं, हमको हमारे पिता के सामने जीने की ज़रूरत है, और वो हमें ऊँचा उठाएगा, हमको शेरोमनी बनाएगा। प्रेज गॉड। और मैं टेस्टिमनी भी है मेरी इसमें कि मतलब मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि मतलब मुझे प्रभु में आने के बाद फॉलो क्या करना है वो मुझे पता ही नहीं। वो मतलब इतना कन्फ्यूजन था कि आगे का जो भी मैंने डिसीज़न लिया सारे डिसीज़न रॉन्ग ही थे, क्योंकि वो उस बेस पर थे। सो लाइफ में बहुत चीज़ें गलत होते गई। फिर ऐसा हुआ कि परमेश्वर पे मुझे विश्वास करना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर सच में है कि नहीं, वो उस सिचुएशन में मैं आ गई थी। और ये सवाल मैंने ना बहुत जब छोटी थी तब पूछा था कि मेरे हृदय से पूछा था कि ये नया करार हमको फॉलो करना है कि पुराना करना है। सो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी चर्च में, तो किसी ने इसका जवाब मुझे दिया नहीं। और फिर 23-24 साल बीत गए और फिर भी इसका जवाब किसी ने मुझे दिया नहीं। मतलब ये परमेश्वर का ब्लेसिंग है कि परमेश्वर ने मेरे उस सवाल को याद रखा, बचपन के सवाल को जो मैंने 13-14 साल में पूछा था। मुझे याद है जब मैं बाइबल पढ़ती थी और जब मैं मेरा घर का सिचुएशन देख रही थी, लोगों को देख रही थी, उनका बर्ताव देख रही थी, चर्च में जब देख रही थी कि मैं वहाँ पे जो जा रहे थे वहाँ जो शिक्षा दी जा रही थी, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। क्योंकि मैं बाइबल पढ़ती थी
तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी क्योंकि नया करार मैंने ज़्यादा पढ़ा है। सो वो जो नया करार है वो उस सिचुएशन से मैच नहीं होता था। तो मैं बच्ची थी तो फिर मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि मतलब ऐसा क्यों है, मतलब बाइबल क्या कह रही है और ये लोग क्या कह रहे हैं, तो हमको फाइनली मसीह में करना क्या है। सो मैं बोलते ना हर कदम पे मेरे एक मतलब सवाल खड़े होते गए और वो 23-24 सालों में मेरे सिर पे बहुत बड़ा से बोझ आ गया कि सवालों का बोझ आ गया कि फाइनली लाइफ में करना क्या है, मसीह में मेरा जीवन है क्या। सो मतलब लाइफ पूरी खाली हो गई, बोझ से भरा हुआ। एंड देन मतलब ऐसे बहुत एकदम उलझ गई थी, मैं एकदम उलझ गई थी क्योंकि मेरा अंदर से मेरी आत्मा कहती थी मुझे प्रभु में ग्रो होना है, बढ़ना है। और मेरा हृदय कहता था कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और अंदर से वो आता था कि मैं भी परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, पर जाना कहाँ है वो पता ही नहीं मुझे, बिकॉज बाहर का जो माहौल था वो अलग ही था। जब मैंने फर्स्ट टाइम अंकल जैक को मैंने सुना तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा। न्यू एंड ओल्ड कवेनेंट मैंने जब सुना तो इसमें ऐसा है कि ओल्ड कवेनेंट में सारी चीज़ें बाहर की है, जैसे उपवास करो, प्रार्थना करो, बलि चढ़ाओ, ये करो वो करो, वो उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। पर न्यू कवेनेंट में हृदय के बारे में कि हमारा हृदय कैसा है, क्योंकि चर्च में भी हमने बहुत देखे तो बहुत लोगों को हमने बहुत स्पिरिचुअल समझा, फिर उनका अंदर का लाइफ देखा तो वो पूरा एकदम अलग ही था कि उनके बाहर के जीवन से उनका अंदर का जीवन मैच ही नहीं होता था। फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि मुझे करना क्या है, मतलब मुझे फॉलो किसको करना है। जब मैंने वो बुक भी पढ़ा मैंने अंकल जैक का, तो फिर न्यू कवेनेंट के बारे में उन्होंने बताया कि मतलब हमारा हृदय से न्यू कवेनेंट पूरी तरीके से हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है कि हमारा हृदय कैसा है परमेश्वर के सामने, क्या हमने पूरी तरीके से खुद को समर्पित किया है, क्या हमने अपने सारे बोलते हैं ना वेदी पे चढ़ाया है क्या खुद को हमने। न्यू कवेनेंट में मतलब इतना ज़्यादा मुझे शांति मिली वो चीज़ पढ़कर सुनकर, और इतना ज़्यादा मुझे आनंद फील हुआ कि मतलब ऐसा लग रहा था कि अरे यही तो मैं ढूंढ रही थी। और मैंने परमेश्वर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। परमेश्वर फेथफुल है, विश्वास योग्य है, और परमेश्वर अपने खोजने वाले को मिलता है और सच्चाई हमको स्वतंत्र करती है। मेरे को वचन के द्वारा मेरे को बहुत आशीष मिल रही है। और एवरी संडे जो मैं अटेंड कर रही हूँ मैं खाली हाथ आती हूँ पर कुछ लेकर जाती हूँ और बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ जा रही हूँ। और जो मेरे लाइफ की जो उलझन थे वचन के द्वारा वो सॉल्व हो रहे हैं, और जितना ज़्यादा मतलब और ज़्यादा यह हो रहा है कि मैं और ज़्यादा डीप जाऊँ। मुझे बहुत मदद मिल रही है। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत आभारी और मैं धन्यवाद करती हूँ। I thank God the Father through Lord Jesus Christ. I would like to, very briefly, I would like to share, I think time is up. Our Father is changing us through Lord Jesus Christ. When God created Adam, and after the fall of Adam, in the new covenant, God is working through Lord Jesus Christ in making us His children. And we have all heard different aspects. I quickly want to share from 1 Corinthians chapter 2, verses 2. For I am determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. This was the preaching that Paul used to do when he was preaching to the new converts and also to the old. In Philippians chapter 3, verses 7, but whatever things are gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, from whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, that I may gain Christ, and may be found in Him, not having a righteousness of my own derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to His death. And then in verse 11, in order that I may attain to the resurrection from the dead, not that I have already obtained it or have already become perfect, but I press on so that I may lay hold of that for which I was laid hold of by Christ Jesus. So Paul is emphasizing मैं हिंदी में कहता हूँ, पॉल जो है वो जब भी प्रचार करता था
उसके सारे प्रचार के अंदर जो मुख्य विषय होता था वो यीशु मसीह होता था, क्योंकि परमेश्वर ने इस नए करार के अंदर हम सबको यीशु मसीह के द्वारा उनकी संतान को बनाया है। हम उनकी संतान यीशु मसीह के द्वारा उन पर विश्वास करके हम उनके संतान बन गए हैं, और वो विश्वास ही है जो हमको पूरे अंत तक धीरे धीरे करके बदलाव लेकर आएगा। तो नया करार मेरे जीवन के अंदर जो कार्य किया, जो मैं कह सकता हूँ कि रोमियो 6 अध्याय 14 वचन, जैसा भाई मैथ्यू ने कहा कि बाइबल के अंदर विक्ट्री करके ऐसा कोई शब्द नहीं है कि पाप के ऊपर विक्ट्री होगा करके। अगर हम देखेंगे तो डेलिवरेंस करके है, छुटकारा जो है। तो मेरे जीवन के अंदर नया करार ने एक कार्य किया है कि पाप जो है वो प्रभुता नहीं करेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कभी पाप में नहीं गिरता, इसका अर्थ ये है कि वो कभी भी मेरे ऊपर एक हैबिट या एक दबाव डाल के हमेशा मेरे ऊपर रहेगा। जब भी अगर मुझसे गलती हो गया, जब भी मुझसे कोई पाप हो गया, तो पवित्र आत्मा, जैसा हम कई बार सुना, एक बॉल की तरह वो जैसे नीचे गिरेगा तुरंत बाउंस बैक होगा, तो वो पवित्र आत्मा कर सकता है। जॉन के अंदर लिखा है 16 के अंदर कि पवित्र आत्मा जो है वो हमको कन्विक्ट करता है सिन के बारे में, राइचस के बारे में और जजमेंट के बारे में। तो वो कन्विक्शन हमारे अंदर जब आता है, तुरंत यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम तुरंत वापस खड़े हो सकते हैं। एक अगर जितनी बार हम देर करते हैं परमेश्वर के पास जाने के लिए, मैटर को सेटल नहीं करके हम अपने आप को हमारी धार्मिकता के द्वारा या हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, शैतान उतना ही हमारे कान के अंदर झूठ डालेगा, हमको और कंडेम करेगा, ताकि हम ना परमेश्वर को फेस कर सकते हैं, ना अपने ब्रदर्स और कलीसिया में किसी को, या बाहर भी हमको कंडेमनेशन रहेगा। बट जब हम परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर का वादा है कि 1 यूहन्ना 1:9 कि वो हमको हमारे सारे पापों से माफ़ करेगा। तो ये एक नया करार का मैं अपने लाइफ में मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि रोमन 6:14 ये एक ट्रूथ है और ये सच्चाई है। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वाला वचन मेरे लिए है वो लूक 14 के अंदर, जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपना क्रॉस उठाओ और मेरे पीछे चलो। तो ये मेरे नए करार के अंदर मैंने ये अनुभव किया है कि क्रॉस उठाना बहुत एक शिष्य का, एक डिसाइपल, एक शिष्य का, क्योंकि यीशु मसीह पूरे 3.5 साल में सिर्फ 12 शिष्यों को चुना, उनमें से एक ने धोखा दिया। तो सिर्फ ये 11 शिष्यों के साथ या 12 शिष्यों के साथ अपना पूरा जीवन बिताया। तो ये बहुत डीप है, ये बहुत टाइम लगता है और इसके लिए बहुत, तो कई बार अगर हम क्रॉस नहीं उठा सकते तो उससे भी हमको कंडेमनेशन होता है। तो बट हमारा ये एक प्रोसेस है, परमेश्वर हमको सहायता करेगा। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू। जो नया करार ने मेरे जीवन में क्या काम किया है, मुझे करीबन बहुत साल पहले प्रभु ने एक पाप में से छुटकारा दे दिया था। और मैं अपने जिस कॉलेज में जाता था डिप्लोमा में, वहाँ पे मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो लोग मैं मसीह होने के लिए और हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते थे हर एक बात में। जैसे कि अगर मेरे को कुछ बहुत बुरा टेम्पटेशन होता था, मैं अपने बुक में लिखता था कुछ तो कि द पाथ ऑफ द राइचियस इज लाइक द फर्स्ट ग्लीम ऑफ डॉन शाइनिंग एवर ब्राइटर लाइक द होल डे सन, और ऐसे लिखते जाता था। तो लोग मेरे को बहुत चिढ़ाते थे मेरे कॉलेज में। और कभी कोई बंक मारता था, मैं बंक नहीं मारता था, मैं बैठता था क्लास में, मेरे को देख के बाकी सब लोग आते थे और जो झूठ मैंने बोले थे वो मैंने सब बता दिए थे। लेकिन जब प्रभु ने मुझे विक्ट्री दिया, उसके बाद मुझ में एक स्पिरिचुअल प्राइड आ गया। वो एक अननोन प्राइड था और अब भी काफ़ी हद तक है कि मुझे प्रभु बता रहे थे कि तू मेरी तरफ होके चल। मुझे तभी प्रभु की बात मालूम नहीं थी, मैं प्रभु की आवाज़ उतना सुन नहीं पाता था। लेकिन जब प्रभु ने मुझे बताया और मैंने जब वो पर्पस ऑफ फेलियर बुक पढ़ा जो जैक पेनन बोल रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि ना जब तक हम एक 0 पॉइंट नहीं पहुंचते तब तक हमें कुछ नहीं मालूम पड़ता कि हम पापी है या नहीं। मैं अपने धार्मिकता से कभी प्रभु को खुश नहीं कर सकता। जितना भी टाइम मैं फास्ट करूं, प्रे करूं, बाइबल पढूं और जितना भी कुछ भी करूं, नहीं कर सकता। और ये मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने रिसेंटली मेरे को प्रभु ने एक याद दिलाया अबाउट मार्टिन लूथर। अभी मार्टिन लूथर वो एक कैथलिक प्रीस्ट थे वो,
और वो सिंसियर कैथलिक प्रीस्ट थे। उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया अपने आप को धार्मिक बनाने के लिए। मुझे पता नहीं उन्होंने क्या किया, पर उन्होंने भी बहुत बार फास्टिंग किया रहेगा, प्रेइंग किया रहेगा, बाइबल पढ़ा रहेगा, कितना कुछ किया रहेगा उन्होंने, लेकिन फिर भी वो एकदम डाउन हो जाते थे, पूरा डिप्रेस्ड हो जाते थे। तब उनको ये एक, अब ये देखो किंग जेम्स वर्जन में पढ़ रहा हूँ, तब इनको ये एक मालूम पड़ा। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 20 to 23 में 24 में भी फटाफट पढ़ लेता हूँ। Therefore by the deeds of the law there shall be no flesh justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe. For there is no difference, for all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption in Christ Jesus. इसका मतलब मैं जो भी ट्राई करूं, कितना भी पाप के ऊपर मैं जय करने के लिए ट्राई करूं, उससे मैं नहीं बचाया जाता, मैं सिर्फ प्रभु के लहू से बचाया जाता हूं। और प्रभु ने एक बार मुझे जो काम किया, मुझे प्रभु पर भरोसा रखना है कि वो करेंगे मेरे लिए वो जीवन में, ताकि जितना भी मैं पाप में गिरा हुआ हूँ, प्रभु बोलते हो तो उठेगा। अभी इवन मैं अपने बेटे ऐशर को भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। वो पहले क्या बचपन में बहुत गिरता था तो रो पड़ता था बहुत, अभी वो गिरता है मतलब चलते वक्त तो उसको ऐशर तो स्ट्रांग है तो उठेगा, तो कुछ लगेगा नहीं, उठ जा, तो 2-3 सेकंड के उठ जाता हो। प्रेज गॉड।